મને આપો આશીર્વાદ. વંદે વીરમ વંદે વીરમ વંદે વીરમ વંદે વીરમ મહાવીરમ 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 મહાવીરમ. સામે હા બસ બસ બરાબર ચાલો. સામૂહિક ગુરુવંદન. ઈચ્છામિ ખમાસમણો વંદે ઉજાવણી જાય નિસિંહાય મથૈણ વંદામી. ઈચ્છામિ ખમાસમણો વંદે ઉજાવણી જાય નિસિંહાય મથૈણ વંદામી. ઇચકાર સુહરાઈ સુખ તપ શરીર નિરાબાધ સુખ સંજમ જાત્રા નિર્વહ છોજી. સ્વામી શાતા છેજી ભાત પાણીનો લાભ દેશો. ઈચ્છામિ ખમાસમણો વંદે ઉજાવણી જાય નિસિંહાય મથૈણ વંદામી. ઈચ્છા કારણે સંદેશા ભગવાન અબુઠ્યોમી અભિંતર રાયમ ખામેઉ ઈચ્છમ ખામેમી રાયમ. તસ્મિચ્છામિ દુક્કડમ ઈચ્છામિ ખમાસમણો વંદે ઉજાવણી જાય નિસિંહાય મથૈણ વંદામી. સુખ સાતામાં સાહેબ ઈચ્છામિ ખમાસમણો વંદે ઉજાવણી જાય નિસિંહાય મથૈણ વંદામી. ઈચ્છા કારણ સંદેશા ભગવાન વાયણા સંદેશાઓ. ઈચ્છામિ ખમાસમણો વંદે ઉજાવણી જાય નિસિંહાય મથૈણ વંદામી. ઈચ્છા કારણ સંદેશા ભગવાન વાયણા લેશો. ઈચ્છામિ ખમાસમણો વંદે ઉજાવણી જાય નિસિંહાય મથૈણ વંદામી. ઈચ્છા કારણ સંદેશા ભગવાન પસાય કરી ઈચ્છારી ભગવાન પસાય કરી વાયણા પ્રસાદ કરાવશો. નમો નિયંદણ નમો સિદ્ધાણમ નમો હિરિયાણ નમો વિજ્જાયાણમ નમો લોય સબ્બ દાવણમ યદુમજન મુકારો સબ્બ પાવપણાસનો મંગલાનંદ બેસિંબડમમ અવૈ મંગલો. નમો દુર્વાર રાગાદિ વૈરી બારદિ બારીને અર્ધ યોગીનાથાય મહાવીરાય તાઈને. જય જગજીવ જોણી વિયાણો જગગુરુ જગાનંદો જગનાઓ જગબંધુ જય જગપિયા મહો ભૈવમ. જય સ્વાણમ પવવો તિત્તરણો પશ્ચિમો જય જય ગુરુલોકાણો જય મહપ્પા મહાવીરો. ઓમકારમ બિંદુ સંયુક્તમ નિત્યમ ધ્યાયન્તિ યોગિનઃ કામદમ મોક્ષદમ ચૈવ. ઓમકારાય નમો નમઃ. જય ધર્ણેન્દ્રનમં સિંહ પૌમા વૈ પમોનિ સેવ્ય પાય. ઓમ ક્લીમ બ્રીમ મહાસિદ્ધિમ કરેઉ શ્રીપાસ જગનાહો. અજ્ઞાન તિમિરાંધાનામ જ્ઞાનાંજન શલાકયા નેત્રમુન્મીલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ. તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. નારદય મંદિર મહી સુરી ભુવન ભાનો જડ હળે. જેનાવદન મંદિર મહી મા શારદા કેલી કરે. જેનારદય મંદિર મહી
સુરી ભુવન ભાનું જળ હળે જેના વદન મંદિર મહી મા શારદા કેલી કરે જેના ચરણ મંદિર મહી સહુ સંપદા આવી મળે જેના ચરણ મંદિર મહી સહુ સંપદા આવી મળે તે રત્ન સુંદર સુરીવરા રહેજો સ્મરણમાં હર પડે તે રત્ન સુંદર સુરીવરા રહેજો સ્મરણમાં હર પડે તે રત્ન સુંદર સુરીવરા રહેજો સ્મરણમાં હર પડે. આહા કેવો ભાગ્ય જાગ્યો વીરના ચરણો મળ્યા આહા કેવો ભાગ્ય જાગ્યો વીરના ચરણો મળ્યા રોગ શોક દારિદ્ર સઘળા જે હતી દૂરે ટળ્યા આહા કેવો ભાગ્ય જાગ્યો ફેરો ટળ્યો છે દુર્ગતિનો શુભ ગતિ તરફેણમાં ફેરો ટળ્યો છે દુર્ગતિનો શુભ ગતિ તરફેણમાં અલ્પકાળે મોક્ષ પામી વિચરશું આનંદમાં આહા કેવું ભાગ્ય જાગ્યું વીરના ચરણો મળ્યા આહા કેવું ભાગ્ય જાગ્યું. જેમના તપનો ન મહિમા કરી શકે શક્રેન્દ્ર ભી જેમના તપનો ન મહિમા કરી શકે શક્રેન્દ્ર ભી તેમને હું સ્તવું શું બાલક શક્તિનો જ્યાં લેશ નહીં આહા કેવો ભાગ્ય જાગ્યો. ઓ કામધેનુ કામ કુંભ ચિંતામણી પ્રભુ તું મળ્યો કામધેનુ કામ કુંભ ચિંતામણી પ્રભુ તું મળ્યો આજ મારે આગણે શ્રી વીર કલ્પતરો ફળ્યો આહા કેવું ભાગ્ય જાગ્યું.
जपता थया लब्धिना भंडार वाला वीर वीर जपता थया गौतम श्री मोक्षधामे हे प्रभु नी मोटी दया गौतम श्री मोक्षधामे हे प्रभुनी मोटी दया आहा केवो भाग्य जाग्यो वीरना चरणों मळ्या आहा केवो भाग्य जाग्यो। चतुर्थ दिवसनी आ प्रवचनमाळामां समस्त श्री भरूच जैन महासंघ तरफथी आप सौનું સ્વાગત છે। આજના પ્રવચન બાદ પૂજ્યશ્રી દ્વારા 5 પ્રશ્નો આજના પ્રવચનના વિષય આધારિત પૂછવામાં આવશે। જેને પણ પૂછવામાં આવે એમણે જવાબ આપવાનો છે। સાચો જવાબ આપનારને પૂજ્ય ગુરુદેવ લિખિત પુસ્તક પુરસ્કાર તરીકે આપવામાં આવશે। મોબાઈલ આપણે સાયલેન્ટ अथवा સ્વિચ ઓફ કરી દઈએ। ખૂબ ખૂબ આભાર, ધન્યવાદ। बहुत बड़े डॉक्टर थे। मरीज को अपॉइंटमेंट लेने के लिए करीबन 2-2 महीना वेट करना पड़ता था और ऐसे डॉक्टर पर रात को 2:30 बजे अननोन महिला का फोन गया। पहले थी करी दो ना रोज। अमर गयो जती ना 2:30 बजे वो लेडी का फोन, लेडी अननोन, और डॉक्टर को इतना ही कहा मैं सुसाइड करने के लिए जा रही हूँ, मगर आपका नाम सुना है, आप मुझे सुसाइड नहीं करना चाहिए, उनके लिए कुछ कन्विंस करा दो, मे बी पॉसिबल मैं सुसाइड न भी करूँ। रात को 2:30 बजे विदाउट अपॉइंटमेंट अननोन लेडी का फोन और डॉक्टर ने बात शुरू कर दी। 5 मिनट, 10 मिनट, 20, 25, 30, 40, 45, 50, 1 घंटा, 2 घंटा, डॉक्टर अभी भी आपकी बात दिमाग में बैठते नहीं है, और 2.5 घंटा। आज मैं बात करना चाहता हूँ रूट ऑफ रिलीजन। हम धर्म तो बहुत करते मगर उनका रूट समझना चाहिए। यदि ये रूट नहीं होगा तो पेड़ कैसे तैयार होगा। और वो 2.5 घंटे के बाद लेडी ने इतना ही कहा, डॉक्टर साहब आपने जो भी बात की, मेरे मन में एक भी बात सुसाइड नहीं करने के लिए आपका लॉजिक बैठा नहीं है। व्हाट? बस वही 2.5 घंटे आपने सब कुछ समझा देने के बाद भी सुसाइड नहीं करना चाहिए, वो आपका लॉजिक मुझे बैठा नहीं, फिर भी मैं सुसाइड करने का विचार पेंडिंग रखती हूँ। तब डॉक्टर ने पूछा कारण क्या है? सुसाइड करने के लिए तैयार हो गई थी, अभी पेंडिंग में रखती है, फिर भी मेरा लॉजिक भी तुझे बैठा नहीं, फिर भी तू तय करके बैठेगी सुसाइड में नहीं करती, क्यों? डॉक्टर साहब एक ही कारण, किसी अननोन व्यक्ति के साथ 2.5 घंटे तक एक डॉक्टर बड़े प्रेम से बात करे, वही इनफ था, सुसाइड नहीं करने के लिए काफी था। और इसलिए मैंने सुसाइड नहीं करने का तय किया है। चलो भाई अब ये बेसी आओ। मैं धर्म की शुरुआत करना चाहता हूं। एक बात समझ लो,
पहले एक कंसेप्ट क्लियर कर दूं, यहाँ बैठने वाले सभी के मन में गलत फहमी में भी पॉसिबल शायद हो तो, सच बोलो, पैसा सुख है कि पैसा से सुख है? पहले मैं धर्म की बात करने के पहले आप जिसके पीछे आपने पूरी जिंदगी लगा रही है उनके लिए मैं कहना चाहता हूं, पैसा वो सुख कि पैसा से सुख? धर्म की बात करने के पहले ये ग्राउंड करना इसलिए तैयारी की ताकि आपके मन में गलत फहमी तो दूर हो जाए। सच बोलो, तुम आपके मन में जो भी बैठा है पैसे के लिए, पैसा ये पोते सुख छे कि पैसा थी सुख छे? एक भी नहीं। आप जो भी बोलो भौतिक सुख और अध्यात्म सुख हो तो भी हमें यूं कम छोड़ी ना विचार। मैं जो कहना चाहता हूं वो इतना बता दो कि पैसा वही सुख है कि पैसा के मीडियम से सुख आता है? आप आपके मन में ये कंसेप्ट लेनी, पैसा एक सुख के पैसा थी सुख से नहीं बात है। क्या हो गया? पैसा नहीं વાત આવે ત્યારે તો મેં દશેરાના ઘોડાની જેમ દોડવા માંડ્યો, અત્યારે બંધ કેમ છે? એ બાબુ સોશિયલ મીડિયાની વાત છો ને એમાં તો ઘણું આવે છે યાર। तुम्हारा दिमाग बिगड़ने सोशल मीडिया से। पहले तो मुझे ये बता दो, नहीं बहुत गंभीरता से आज का प्रवचन में कहना चाहता हूं, पैसा ये सुख એવું જો તમે માનીને બેઠા હો તો અબજોપતિ માણસો પણ સુસાઇડ કરે છે, ડિપ્રેશનમાં, ઇરિટેશન, ફ્રસ્ટ્રેશનમાં છે, ટેન્શનમાં છે। અમારી આગળ આવીને એમણે કહે મારા સાહેબ જીવનમાં મજા નથી, અબજો રૂપિયા હોવા પછી પણ आई वुड लाइक टू जो क्लैरिफिकेशन आपसे पूछना है, पैसा वही सुख कि पैसा से सुख मिलता है? यदि प्रयास करो तो, मगर पैसा वो सुख नहीं है, पक्का आपके मन में बैठता है? क्या हो गया? हाँ? मैं क्या बोलता हूँ, अरे जीववा माटे तो अमारे पण जुए छे ने, खोराक तो अमारे जुए छे। मारे तमने जुदू कहूँ छे, जीववा माटे तमे आ बधी बात न करो। मने जे प्रश्न छे पैसा पोते सुख छे कि पैसा थी सुख मळी शके छे, खाली एटલું જ। એટલે ન પણ મળે એવું બને ને? क्या हो गया? क्या है? नहीं नहीं, मैं वो नहीं कहूँगा। मैं आपसे वो कहना चाहता हूँ, मैं जो बात करना चाहता हूँ वो है, ये सामायिक, ये प्रतिक्रमण, ये परमात्मा की बुझाए दर्शन, ये सब धर्म क्रिया है, धर्म नहीं है। मैं जो बात करना चाहता हूँ ना वो ये बात है, पैसा वो सुख नहीं है। मे बी पॉसिबल पैसा का तुम सदुपयोग करो, इन्वेस्ट अच्छी जगह पे करो, मे बी पॉसिबल आपको सुख मिल सकता है। मिलेगा कोई गारंटी नहीं, मगर पैसा वो तो सुख 100% नहीं है, ये पक्का कर लो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये मंदिर में जाना, दर्शन, वंदन, पूजन, सत्कार, सम्मान करना, दान करना, शील का पालन करना, तप करना, धर्म क्रिया है, वहाँ से धर्म मिल सकता है। रिपीट, पैसा से सुख मिल सकता है, पैसा सुख नहीं है। धर्म क्रिया वो धर्म नहीं है, धर्म मिल सकता है। ये कंसेप्ट में क्लियर करना चाहता था। पैसा बड़ा बधा सुखी नहीं तो धर्म क्रिया करना बड़ा बधा धर्मी पण नहीं। मैं जो कहना चाहता हूँ वो कंसेप्ट इसलिए क्लियर करना चाहता हूँ, सामायिक करने से समता आ जाएगी, भगवान की भुजा से प्रसन्नता आ जाएगी। ये जो धर्म होगा ना वो धर्म क्रिया से धर्म आ जाएगा। अभी मैं कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ, हो गया पक्का? मैं जो बात करना चाहता वो था, पैसा सुख नहीं, पैसा दी कदाच सुख मળી सके तो हूँ चारित्र મને मार गया, हमने दीक्षा ले ली, ये धर्म नहीं था, धर्म क्रिया था। ये करते 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 हम धर्म तक पहुंचना पाते थे। दिस इज द माइलस्टोन, नॉट मंजिल। नरेश भाई क्लियर થઈ ગયું? છતાં આપણે શું કહીએ ખબર છે, બહુ ધર્મ ક્રિયા કરીને આપણે શું કહીએ, આ સાહેબ ધર્મી છે, બહુ ખોટું નથી। એમ તમે પણ બહુ પૈસાવાળાની ઓળખાણ અમારી આગળ આપો તો શું આપો? બહુ રામ છે સુખના નામે કાંઈ હોય તેની આગળ। ઘણા લોકો મને પોતાનું કાર્ડ આપે, કાર્ડ સમજ્યા ને? હે
ઘણીવાર હા મને આપે ત્યારે હું કંઈ બોલતો નથી. બાકી તમને આજે પૂછ્યું, ખાનગીમાં તો પૂછ્યું નથી, આજે પૂછ્યું તમે કાર્ડ છે ને માટે મને આપો. નહીં નહીં આજે પૂછી લઉં ને. હે બરાબર છે. મને શું કામ છે? ના નથી પડતો. મને શું કામ આપો છો? શું કહ્યું? મારે અટકે? તારા બી અટકે છે મારું? सच बोलो, तुमने कभी कार्ड दे के कहा कि गुरुदेव एक मेरी आइडेंटिटी है, संसार के क्षेत्र में मेरा एक बहुत बड़ा नाम है. आप मुनि जीवन लेके बैठे हो, हजारों किलोमीटर की यात्रा करते करते कोई दुखी दिखाए और उनकी आंखों के आंसू पूछने का आपको मन हो और आपको लगे मुझे लाभ देना है, तो एक कार्ड याद रखना. आप मुझे सबसे पहले बता देना. आई विल ट्राई माई बेस्ट. साचू बोलो, એટલા માટે આપો છો કાર્ડ? નહીં આપવું જોઈએ નહીં. શેને માટે આપો છો? નહીં પ્લીઝ નો કોમેન્ટ. તો આપવું જોઈએ શું કામ? તમે શેને માટે મને કાર્ડ આપો ત્યારે શેને માટે આપો? સંસાર આખો છોડીને બેઠેલો, પૈસા બધા ત્યાગ કરેલો, જિંદગીમાં 56 વર્ષમાં પૈસાને અડે નથી. મારે તમારા કાર્ડનું કરવું જ શું? શેને માટે તમે આપો છો? आपके मन में यदि ये भाव हो कि गुरुदेव कोई दुखी दिखाई पड़े और आपको लगे कि पैसे से कॉपरेट हो सकता है, आपकी मर्यादा है, मगर मैं अनब सनब पैसा लेकर के बैठा हूँ गुरुदेव, इसलिए मैं आपको कार्ड देता हूँ, मुझे बता देना. निश्चित रूप से मैं मेरे यथासंभव इनके दुख को दूर करने का प्रयास करूँगा. आटला માટે કાર્ડ આપતા હો તો જ આપજો, બાકી આપતા નહીં. પાછો મને કે સાહેબ અમારું પરમેનન્ટ એડ્રેસ. મેં તું ટેમ્પરરી એડ્રેસ પરમેનન્ટ. चलो मैं लंबा समय नहीं निकालूंगा. नंबर 1, निश्चित तौर से मैं भी साधु होने के बाद मैं भी धर्म तक पहुंचना चाहता हूं और आप भी धर्म तक पहुंचना चाहते हो. इनका सबसे पहली कंडीशन है लिमिटलेस लव. आप निश्चित तौर से पूजा करने के बाद, सामायिक करने के बाद, प्रतिक्रमण करने के बाद, ये प्रवचन सुनने के बाद, दान करने के बाद, ब्रह्मचर्य का पालन करने के बाद, मासिक श्रमण तपस्या करने के बाद, यदि आप निश्चित तौर से धर्म को पाना चाहते हो, इनकी फर्स्ट कंडीशन लिमिटलेस लव. हृदय का प्रेम गुरुदेव उनको मैं लिमिट तय नहीं करूंगा. पैसे को मैं तय करूंगा क्योंकि उनकी मेरी मर्यादा है. मैं बॉडी का तय करूंगा क्योंकि शरीर की भी मर्यादा है. मगर यदि मैं किसको प्रेम देना चाहता हूं तो इनफिनिट प्रेम मेरे पास है. और सबसे बड़ी बात तो वो है, हम कितना भी प्रेम देते रहे, जीवन में कभी प्रेम की कमी होने वाली नहीं है. आप जिंदगी भर प्रेम देते रहो, फिर भी आपकी प्रेम देने की क्षमता इतनी ही बनी रहती है. आई वुड लाइक टू आस्क यू, हम इस क्षेत्र में कितने कमजोरी की बहादुर है गुरुदेव. लिमिटलेस लव. चाहे कोई भी हो, बस प्रेम देते ही रहूंगा, देते ही रहूंगा. देने के बाद भी मेरे पास कभी कमी तो होती नहीं है, मैं देते ही रहूंगा. आज यहां बैठने वाले सभी को पूछना चाहता हूं, आपके मन में भाव क्या है? मुझे प्रेम मिलना चाहिए कि मुझे प्रेम देना चाहिए? आपकी भूख, आपकी भीख, आपका गोल, मैं जहां भी जाऊं मुझे प्रेम मिलना चाहिए कि जहां भी जाऊं मुझे प्रेम देना चाहिए? हम क्या मानते हैं? बहू बोलती है सास से मुझे प्रेम मिलना चाहिए, सास मानती है बहू से मुझे प्रेम मिलना चाहिए, देरानी बोलती है जेठानी से प्रेम मिलना चाहिए, पति पत्नी से, भाई भाई से, बाप बेटे से, हर एक जगह एक डिमांड है, मुझे प्रेम मिलना चाहिए. आपके मन में यह भाव है कि मुझे सबको प्रेम देना चाहिए? What is ultimate goal of life? I would like to give love. चाहे मैं कितना भी दूं तो मेरे पास कभी कम तो होता नहीं, तो मैं देने के लिए तैयार क्यों नहीं? क्यों मुझे लेना है? मैं तो दे दूंगा. मजाक मत करना, कमेंट मत करना. मैं दिल से पूछ रहा हूं कि मेरे जीवन का गोल क्या? मैं निश्चित तौर से बताऊं, कोई भी लड़की शादी करने के बाद अपने ससुराल जो तय करके बैठे ना, पूरे ससुराल को प्रेम देने का मैं काम करूंगी. 100% उनका जीवन टिक जाएगा. आज तुमने देखा होगा सुप्रीम ने जजमेंट दिया है.
यदि पत्नी और पत्नी से अनबनी हो जाती है तो डाइवोर्स तुरंत दे देना। ये तो नहीं कहते संबंध बचाना, खत्म कर देना। और एक बात समझना, नहीं क्या रिप्लेसमेंट होता है, मगर रिलेशन का रिप्लेसमेंट नहीं है, रिपेयर होता है। आप रिलेशन का रिप्लेसमेंट करना चाहते हो, रिपेयर करो। रिप्लेसमेंट क्यों? आपको मैं पूछना चाहता, जल्दी आगे चलना। लिमिटलेस लव, चाहे मैं जिंदगी भर तक देते रहूं, अब जो बरस मेरा हो तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं प्रेम देना चाहता हूं कि मैं लेना चाहता हूं। यहां बैठने वाले कोई भी बोल सकता है, कमेंट के साथ नहीं। मैं सिंसियरली प्रवचन करना चाहता हूं। मेरे मन का भाव क्या है? मैं भरूच में आया, भरूच वाले सबको मुझे प्रेम करना चाहिए कि मुझे प्रेम देना चाहिए? मैं जहां भी जाता हूं सबसे मेरी मानसिकता क्या रहेगी? कुत्ता तो कुत्ता, बिल्ली तो बिल्ली, गद्दा तो गद्दा, चींटी तो चींटी, मकड़ा तो मकड़ा, चाहे कोई भी मिले मैं प्रेम दे सकता हूं। फिर देने के लिए मैं ना क्यों कहूंगा? आपसे मैं पूछना चाहता हूं, हमारी मानसिकता क्या? और ये गोल, एक ही गोल ऐसा है कि जो तुम 100% सफल हो सकते हो। हर जगह मुझे पैसा देना चाहिए, तुम सफल नहीं बनेंगे, मैं भी पॉसिबल। आपके पास पैसा नहीं है। आप बोलो हर जगह मुझे समय देना चाहिए, मैं भी पॉसिबल। आप काम में इतने उलझे हो कि आपके पास समय नहीं है। आप समय नहीं दे सकते तो संपत्ति नहीं दे सकते। अरे आप चाहते हो मेरे पास आने वालों को मैं शब्द का दान करूंगा, मैं भी पॉसिबल। आपको जबान डिस्टर्ब है, अब बोल नहीं पाते हो। शब्द का दान नहीं कर सकते हो, समय का दान नहीं कर सकते हो, संपत्ति का दान नहीं कर सकते हो, शरीर का दान नहीं कर सकते हो, मगर जब भी चाहो तो प्रेम का दान कर सकते हो। सच बोलो, हम इस क्षेत्र में उदार है क्या? सभी को मैंने गुरुदेव पैसा नहीं दिया, सभी को मैंने समय नहीं दिया, सभी को मैंने शरीर नहीं दिया, मगर जो भी आया जैसा भी आया गुरुदेव मैंने उनको प्रेम तो 100% दिया। ये है रिलीजन, ये रूट है रिलीजन का। और ये बोने के बाद 100% धर्म का पेड़ खड़ा होके ही रहेगा। चाहे पैसे का कितना भी दान करो, धर्म होगा गारंटी नहीं, मगर प्रेम का दान करते चलो, दावा के साथ मैं कहना चाहता हूं धर्म आ जाएगा। लिमिटलेस लव, what is our mentality and what is our activity? अभी तक मैंने जो भी किया है वो क्या किया है? हम जो मेरे जिंदगी के जितने साल गए, 30, 40, 50, मेरे 60, 76, मैं एक बार मेरे पास को देख लूं और मैं ये चेक कर लूं कि मैंने जो भी किया इतने 56-76 साल के दीक्षा प्रिया में, मेरे पास आने वाले को मैंने प्रेम झम के दिया है। जो भी आया उनसे मैंने प्रेम मांगा है और प्रेम की अपेक्षा रखी थी। आज इतनी अच्छी सभा में सिर्फ एक कोटेशन में आगे चलना चाहूंगा। 4-5 बात ऐसी कि जो धर्म का रूट बन के 100% आपको सफल बना देगी। और एक बात बताना चाहूंगा, मुझे और आपको भगवान मिले सिर्फ प्रेम से मिले। ये परमात्मा मंदिर में जो विराजमान है, पार्श्वनाथ के, महावीर स्वामी, आदिनाथ के, शांतिनाथ, इनके कारण एक ही कि उन लोगों ने लिमिटलेस लव देने का शुरू किया था। चाणक्य को शिव सर्प ने भगवान महावीर को खत्म करने का प्रयास किया था, वहां भी भगवान ने यही लिमिटलेस लव, तू जो करना चाहे वो कर सकता है, तू तो सांप है, मैं तो भगवान हूं। तूने क्या किया मैं चेक नहीं करूंगा, मुझे क्या करना है मैं ही चेक करूंगा। सच बोलो, ये मानसिकता है। सामने वाले ने गुरुदेव मुझे तिरस्कार किया, मैंने क्यों प्रेम करूं? तो मैं रिपीट करना चाहता हूं, सामने वाले को जो करना है करे, मुझे यही करना था। What about your mentality and what about your activity? हमारा प्रयास क्या, हम क्या चाहते गुरुदेव? यदि एक ही चीज मेरे पास है, काउंटलेस 100% गुरुदेव जितना हो सके उतना देते रहूंगा। यहां बैठने वालों को फिर से कहूंगा, दूसरे किसी के दान के लिए तुम ना बोल सकेंगे, इसमें तो ना बोलने का तुम्हें चांस नहीं है, क्योंकि एक तो आपके पास है इनफ, और देने के बाद भी कम तो होता नहीं है, फिर देने में हम रुकते क्यों है?
आई वुड लाइक टू रीजन फ्रॉम यू, प्रेम देने में हम रोकते क्यों है? क्योंकि देने के बाद भी एक तो हमारे पास अवेलेबल है स्टॉक में, और चाहे कितना भी दो तो हमारी एफडी तो कम होती नहीं, तो फिर देते क्यों नहीं है? नहीं, मैं आपसे दिल से पूछना चाहता हूं, व्हाई नॉट? और सच बोलो, परिवार में 10 दिन के लिए तुम प्रयोग करो, सास बहू देरानी जेठानी बेटा बाप हर एक चीज तय करके, दिस इज अवर मिशन, वी शैल गिव टू लव ओनली एवरीवन। कोई मुझे प्रेम दे या न दे, गुरुदेव मैं प्रेम करना चाहती हूं, मैं प्रेम करना चाहता हूं। 10 दिन तक परिवार में प्रयास करो और 100% आपका डाइवोर्स बंटवारा हर चीज खत्म हो जाएगी। पिताजी आपके साथ अभी मैं नहीं दे सकता हूं, ये सब खत्म हो जाएगा। एक प्रेम देने का मिशन बना दो, जो भी आएगा मैं प्रेम देती रहूंगा, जो भी जैसा भी जो भी करे मुझे प्रेम देना है। सास मेरे साथ नहीं बैठती है तो भी मैं प्रेम करूंगी, बहू मेरे साथ नहीं बैठती है तो भी प्रेम देती रहूंगी। करो तो सही एक बार प्रयास। और एक बात तुम लिख लो, दुर्योधन बनके कभी दुर्योधन को हरा नहीं सकते, अर्जुन ही बनना पड़ता है। और अर्जुन भी तब ही जीतता है जब इससे सपोर्ट में कृष्ण रहते हैं। आखा महाभारतना युद्धों निचोड़ा है कि दुर्योधन ने हरावा माटे तमे दुर्योधन बनीने दुर्योधन ने हरावी नहीं सको, तमारे अर्जुन ज बनવું પડશે, અને अर्जुन बनवा माटे તમારે કૃષ્ણને સપોર્ટમાં રાખવા પડશે। वी आर रेडी फॉर दिस। साहेब એને મને ગાળ દીધી, હું મેં ગાળ દીધી, આ દુર્યોધનની સામે દુર્યોધન તમે જીતી નહીં શકો। आप मुझे चैलेंज करो, बोलने की छूट है आपके पास। मैं धर्म का रूप दिखाना चाहता हूं, बड़ी पीड़ा है मुझे भी। राजेश, मैं मेरे जीवन को मेरे हृदय को बहुत संभाल लेता हूं, बहुत। कभी भी ऐसा हेड का हेड माने तुमने तिरस्कार कोई भाव आया ना, कम बैक कुछ काम नहीं अपने को यार। सामने वाले ने मेरे से क्या किया नहीं, मुझे क्या करना है। 5 स्टेप की बात रूट ऑफ रिलीजन की मैं करना चाहता हूं, ये पहले मैं रुका हूं। आपकी ओर से मुझे कोई ठोस रीजन मिले तो मैं आनंदित दूंगा। प्रेम देने से आपको रुकता कौन है और आप क्यों प्रेम नहीं देते? और मैं बताऊं, एक ही प्रेम ऐसा है जो 100% इनका एक्सेस आपको परमात्मा बना देता है। हर चीज का एक्सेस भयंकर है। एनीथिंग इन एक्सेस इज पॉइजन, एनीथिंग इन एक्सेस इज द पॉइजन। मगर लव तुम प्रेम देते चलो, इनका एक्सेस पॉइजन नहीं है, आपको खुद को परमात्मा बना देता है। प्रेमनी अति ए परमात्मानी मति, प्रेमनी अति ए ज परमात्मानी मति। यहां जो भी बैठे मुझे कोई जवाब दे पाएंगे? आपके में होगा कोई रीजन होगा, मैं ना नहीं बोलता हूं, मैं क्लियर कर दूं हो तो। सच बोलो, क्या पाया? आपकी बात समझ में आया? ईगो था, एक्सपेक्टेशन था, उसलिए तुमने प्रेम नहीं दिया। मगर नहीं देने के बाद तुम प्रसन्न रहे, पॉसिबल ही नहीं है। मैं जो कहना चाहता हूं, मेरी हैप्पीनेस तो डिस्टर्ब होती है ना जब मैं ईगो लेकर बांटता हूं। हैप्पीनेस मेरी डिस्टर्ब होती है। इतना मैं ईगो क्यों संभाल के बैठूंगा कि जब मैं इतना मजे में रह सकता था सिर्फ देने से, तो क्या दिक्कत क्या थी? नहीं, देखो, प्रेम देने से प्रेम का एक्सपेक्टेशन, वो प्रेम देना नहीं है, वो बार्टर सिस्टम है। તમે 100 રૂપિયા આપે તમે કહો મને માલ મળે, એમાં તમે નવું શું કર્યું? 100 આપ્યા દાન કર્યું? 100 રૂપિયા આપીને તમારે માલની અપેક્ષા રાખીએ તો બાર્ટર સિસ્ટમ છે, પ્રેમ નથી, અનકન્ડિશનલ પ્રેમ। सच बोल नहीं, हम इतने। और एक बार तुम रुकते हो, एक छोटी सी बात बताऊं, लिमिटलेस लव, इनका थोड़ा एक सैंपल बता दूं। जब मैंने मेरी पहली किताब नहीं लिखी थी तब की बात, बिफोर 42 ईयर्स करीब,
एक ही पार्टी में एक व्यक्ति का 1 करोड़ रुपया का पेमेंट रुका था बिफोर 40 ईयर्स। मैं 2 ही 5 मिनट में जल्दी चलूंगा क्योंकि और स्टेप की बात करना चाहता हूँ। और जिनका करोड़ का पेमेंट रुका था उसके बाद वो पार्टी आई, उसने बोला मैं 40 लाख दे सकता हूँ। समझे नहीं? करोड़ आपी सकूँ हमारी स्थिति नहीं, 40 लाख आपी दो बड़ा बात पता भी दिए। शालीन आदमी था। और अभी देखो राजेश ये प्रेम क्या कर सकता है, मैं इनकी बात करना चाहता हूँ। 1 करोड़ का पेमेंट लेना था, 40 लाख में कमिटमेंट करने की बात आई। उसने बोला एक बात बताऊंगा, मेरे 40 लाख तू देता है तो एक प्रश्न तुझे पूछना चाहता हूँ, इतने छोटे लोगों को भी पेमेंट तुझे चुकाना होगा क्या? तो क्या हाँ, किसी ने 20,000, किसी ने 30,000, 40,000, 50 लाख रुपया लिया होगा, उन सबका भी तो तेरे पास पैसा होगा। तो कि निश्चित ये तो आपका बहुत बड़ा फिक्र था, इसलिए मैंने लगा कि सबसे पहले आपको चुका दूँ, 40 लाख रुपया तुमने आप ही दूँ। और मुझे देने के बाद तो देने के बाद वो छोटे आदमी को देना, कितना दूंगा मुझे मालूम नहीं, कितना दे पाऊंगा मैं नहीं। अब અહીંયા બેઠેલા બધા સાંભળજો, આ માણસે એવો સોદો કર્યો, તારા 40 લાખ તું મને આપવા માંગે છે આપી દે, કરોડ તને મળી ગયાની સાઇન કરી આપું અને મારા 40 લાખ તું મને આપે છે ને એની બદલે નાના નાના માણસોના તું જે નથી આપવા માંગો ને બધાના પૂરા કરી દે, મને મળી ગયા, હું લખી આપું છું। ये पराक्रम, ये कम पराक्रम है क्या? खुद को मिलता था 40 लाख, वो छोटे आदमी को देना, ये लिमिटलेस लव था। आगे चलना चाहूंगा मैं, समय नहीं होगा मेरे पास। आपको आपकी जो भी मानसिकता मैं रिपीट करना चाहूंगा, रूट को छोड़ के कभी पेड़ बन सकता होगा, मगर प्रेम को छोड़ के कभी धर्म नहीं बन सकता है। विदाउट रूट एक बार पेड़ बन भी पाएगा, मगर ये बिना प्रेम तुम परमात्मा बन सको, नेवर, नॉट पॉसिबल एट ऑल। और एक बात कहूं, पैसा विना सुख મળે એ હું છું। અમને મળે છે પૈસા વિના સુખ, પરિવાર વિના પણ અમારે ચાલે છે, એના વિના પણ સુખ અમને મળે છે। પૈસા વિના પરિવાર વિના પણ ચાલી શકે, પણ પ્રેમ વિના ન સાધુને સુખ મળે, ન તમને મળે, न दाऊद इब्राहिम ने મળે, न कोई ने મળે। नंबर 1, मेरे हृदय में निश्चित तौर से हमारे गुरुदेव इतने साल के बाद मैं धर्मी नहीं बन पाऊंगा, और धर्मी बने बिना तो गुरुदेव मुझे मरना नहीं चाहता हूं। तो आप कोई रास्ता दिखाओ। भगवान महावीर ने अनंत तीर्थंकर ने रास्ता दिखा दिया है। जब पर्याप्त प्रेम तेरे पास है, चाहे कितना भी दे, मौत तक प्रेम तेरे पास कम नहीं होने वाला है। तो देने में कभी कृपणता मत करना। लिमिटलेस लव, ये सबसे पहला नंबर का स्टेप। कल्पेश के कारण एकाद साचू आम मन में बेसे वो कारण। चलो आगे। सेकंड, हाँ बोलो। तुम समझ बैठे वो नहीं है ना, हम क्या समझे वो तो अलग बात है ना। व्हाट इज द फैक्ट, ये तो हम समझ बैठे, इसलिए तो तुम नहीं देते ना। मैंने पहले बोला ना, वाटकी व्यवहार, दैट मीन बार्टर सिस्टम। तमने कोई 10 रुपया आपे, तमे माल आपे दो, कोई वेपारी तमने नहीं कीधुं मैं माल आपे, कोई एम पण नहीं 10 रुपयानुं दान कर्युं, ए तो नथी कहेता, व्यवहार छे। सामो कांई पण करे, मारे प्रेम आपवानो छे, दैट्स ऑल। धीस इज द यूनिवर्सल ट्रुथ। पहला स्टेप में ज अटकी गया। एक ही टॉपिक पर पूरा प्रवचन कर सकता हूं, मगर समय की कमी है, इसलिए मैं हो सके इतना जल्दी चलाऊं। सेकंड नंबर, सेल्फलेस सैक्रिफाइस। सेल्फलेस, स्वार्थ विनाનું બલિદાન। लिमिट विनाનો प्रेम ए पहला नंबरनी बात। અને सेल्फलेस सेक्रिफाइस
મારો કોઈ સ્વાર્થ ન હોય ને છતાં તમારા માટે હું મરી પડું, આ સેલ્ફ બલિદાન, સાચું બોલો, આવું બલિદાન કેટલી જગ્યાએ, सेल्फलेस सेक्रीफाइस। मैं प्रवचन देता हूँ, कुछ मुझे कुछ नहीं चाहिए आपके पास, आप मुझे थैंक्स गिविंग दे दो, पैसा ने, नथिंग एल्स, बस देते ही रहता हूँ। चाहे हजारों किलोमीटर का विहार किया, कितने दिल्ली, नागपुर, रायपुर, हर जगह विहार करके जाके आए, और जहाँ भी जो भी जितना भी मेहनत किया, बस सेल्फलेस सेक्रीफाइस, यह बलिदान बहुत कुछ दिया। मैं दिल्ली गया तो पत्रकारों ने मुझे पूछा था, माना साहब आपने तो शादी भी नहीं की, आपके बेटे भी नहीं है, फिर भी आप दिल्ली आए और सेक्स शेड्यूलिंग के खिलाफ मुहिम लगा कि आप संसद तक गए। माना साहब एक पूछना चाहते हैं, आपका कोई इंडिविजुअल तो स्वार्थ था नहीं, ना आपकी शादी है, ना आपका परिवार है, ना आपका बेटा है, सेक्स आया तो भी क्या, नहीं आया तो भी क्या, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर भी तुम यहाँ तक क्यों आए? तब मैंने कहा कि बात तुम्हारी सही है, मगर वो दिल्ली गया तो मेरा 40 साल दीक्षा जीवन का चलता था। मैंने कहा 40 साल से इस समाज ने मुझे संभाला है, तो इस समाज के प्रति मेरी भी जिम्मेदारी है, इसलिए मैं आया। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, एक दिन में एक कार्य विदाउट सेल्फलेस सेक्रीफाइस, एक दिवस में एकाद काम तमे बलिदान, स्वार्थ विनाનું બલિદાન ક્યાંય પણ આપ્યું તમે? ક્યાંય પણ? આપણે આપી શકીએ છીએ ને? માત્ર તમે ફરવા માટે જતા હતા, માત્ર ફરવા માટે, અને રોડ ઉપર તમે વૃદ્ધ પુરુષને જોયા કે જે સામે રસ્તો ક્રોસ કરવા માંગતા, ટ્રાફિક જામ હતો, તમે ગાડી ઊભી રાખી, કાકા આવો તમને પાસ કરાવી દઉં, આવું તો તમે કરી જ શકો છો ને? કેટલી વાર આ પ્રયોગ કર્યો તમે? પાલિતાણા તમે પૂજા કરવા માટે ગયા, દાખલા તરીકે તમે વહેલા પહોંચવા માટે લાઈનમાં આગળ ઊભા રહી ગયા હતા, અને પાછળ તમે નજર નાખી તો 80 વર્ષના એક કાકા તડકામાં ઊભા હતા, અને તમે કાકા આવી જાઓ અહીંયા આગળ, હું પાછળ છું, આ પણ એક બલિદાન છે। આઈ વુડ લાઈક ટુ આસ્ક યુ વન ડે, એક દિવસમાં એક વખત આવું બલિદાન કરું, એક વખત। अभी कोरोना आके चला गया, जिन जिन लोगों ने कोरोना वाले को संभाल लिया, डॉक्टर थी, नर्स थी, सच बोलो मैं और कुछ नहीं कहना चाहता हूं, सभी पर फोन करके धन्यवाद दिए क्या? हाँ बोलो, इन सभी को फोन करके तुमने कम से कम धन्यवाद दिए क्या? उनको कभी तुमने अपने खुद के घर में चाय पीने के लिए बुलाया क्या? મારે પૂછ્યું છે કે આપણે કોણ છીએ? પછી ये मैं रूट दिखाना चाहता हूं, ये इनको छोड़ के तुम धर्म क्रिया कर पाएंगे, धर्मी नहीं बन पाएंगे। रिपीट, 2-2 घंटा परमात्मा की पूजा भी कर पाएंगे और मैं साधु भी बन पाऊंगा, मगर इनको तो निश्चित तौर से पकड़ के बैठना पड़ेगा मुझे। कई लोग मुझे पूछते, गुरुदेव इतने सालों के बाद, प्रवचन के बाद, मालूम है दीक्षा जीवन के 3रे साल से प्रवचन करता हूं, 56 साल हुए दीक्षा के, 53 ईयर्स। कई लोग मुझे पूछते कि माना साहब आउटपुट में आपको क्या मिला? आउटपुट में क्या मिला? आनंद मिला। तुम्हें से सम्मान मिला कि नहीं, तारीफ मिली कि नहीं, ताली मिली कि नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। गुरुदेव ने मुझे दिया तो मुझे देना चाहिए। दिस इज सेल्फलेस सेक्रीफाइस। यहाँ बैठने वाले को पूछना, सच बोलो इसमें तुम कमजोर क्यों पड़े? बताओ, एक एक चीज बताओ। इतनी अच्छी सभा में एक छोटा सा जवाब, इसमें कमजोर क्यों पड़े? व्हेन आई पॉसिबल फॉर मी, इम्पॉसिबल तो नहीं।
मैं मानता हूँ डिफिकल्ट भी नहीं है, इजी है, पॉसिबल है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका फोकस होना चाहिए। करूंगा गुरुदेव। साचું બોલું, જ્યારે મુસાફરીમાં બહાર નીકળ્યા હો અને ક્યાંક તમે ચા મંગાવો, ટ્રેનમાં હો અને ક્યાંક ચા મંગાવો અને ચા આવે ત્યારે એકની સાથે 2 કપ ચા મંગાવો, એને તમે કહો એક તારા માટે એક મારા માટે, હે તમારા 1 કપ ચામાંથી ઓફર કરો એમને આખો ચાનો કપ એના માટે કેમ ન મંગાવો? હું ઓફર કરું છું કે આખું ઓઘો આપી દઉં છું? નહીં, મારે જાણવું કેમ ન કરો? 1 કપ ચા તમને પરવડે બી નથી એમ, તમે 1 કપની બદલે 2 કપ દો, એક તારા માટે એક મારા માટે, શું ફેર પડે છે? હજારો રૂપિયા તમારે ક્યાંય ચૂથાઈ જાય છે, લૂંટાઈ જાય છે, ખતમ થાય, તમે ખાલી 10 રૂપિયા માટે આ આર્થિક રીતે કરવું જ નથી તમારે। अभी हाँ? सच बोलो, क्यों नहीं आता है? नहीं आया तो अच्छा है, अभी मैं विचार देता हूँ आपको। मैं बात करना चाहूँ, गुजरात एयरपोर्ट में मेरा दिल्ली का छात्रमा था, जब शिविर थी, एक लड़के ने मुझे बता दिया, माना साहब हम इतने भिखारी है, ऐसे पैसे वाले हैं, मगर आप जब बताते लगता है कि हृदय से हम बिल्कुल भिखारी से भी गए भी थे। मैं बोला क्या हुआ? क्या हुआ माना साहब, मैं साइकिल रिक्शा में आया जानबूझ के, और जैसे गुजरात अपार्टमेंट शिविर का समय होने के पहले जब मैं रिक्शा से उतरा, दिल्ली में जूस का ग्लास मिलता है ना, वो बहुत बड़ा मिलता है। माना से मुझे जूस का ग्लास पीना था, इसलिए मैंने 2 ग्लास मंगवाए। साइकिल रिक्शा चलाने वाले को पैसा देने के पहले मैंने 2 ग्लास आए हो तो मैंने बोला एक तेरे लिए। माना से वो ग्लास मुंह पे लगाने के पहले पूछना लगा कि मेरे लिए? हाँ दोस्त तेरे लिए। मगर क्यों? और हमारे साहब आपके 2 रविवार के पहले की शिविर में ये बात थी, तो गुरुदेव मैं भी तो उसको बोला। देखिए गुरुदेव को सुनने के लिए आते हैं। मैं इतना बताना चाहता हूँ, तुझे क्यों इतना बताऊं दोस्त, मैं नहीं मानता हूँ तेरे पास हमारे जैसी एफडी हो। आने वाले दिनों में तेरे जीवन में कोई भी दिक्कत आ जाए तो ऐसा तो पैसा में भी पॉसिबल तेरे पास न भी हो। और मुझे लगता है तेरी उम्र 45-50 तो हो चुकी है, और ये मशीन से चलने वाली रिक्शा नहीं है, तेरे पैर से चलने वाली रिक्शा है। मैं तुझे देखा तब से सोचता हूँ आने वाले दिनों में तेरे पैर कमजोर हो जाएंगे, रिक्शा नहीं चला पाएगा, तेरा परिवार तेरा घर कैसे चलेगा? मैं और तो कुछ नहीं कर सकता हूँ, मगर मेरे 1 गिलास जूस से तेरे पैर को ताकत मिलती है, मैं धन्य हो जाऊंगा इसलिए। और गुरुदेव तार तार रोने लगा, तार तार रोने लगा। 35 साल से रिक्शा चला तो आज तक मेरे पैर के सामने किसी ने नहीं देखा, खुद की जेब के सामने देखा। ये नहीं कर सकते तुम। यू कांट बेयर 40 रुपीज। हर जगह हिसाब किताब गणित 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 शू छे पण और एक बात याद रखो, जे संबंध में गणित होय छे ए संबंध गणतरी जेटला ज होय छे, वधारे नथी होता। जे संबंध में गणित हो ए संबंध क्यारे अगणित न होय। व्हाट आई वुड लाइक टू अंडरस्टूड, जे संबंध में मैथमेटिक्स हिसाब किताब छे ने ए संबंध मर्यादित ज रहेवानो, अमर्यादित तो रहेवाना नहीं क्यारे। 40 रुपया में रिक्शावाळा हृदय में माणसनुं स्थान तमे कई समझी सको छो? खाली 40 रुपया में कोईना हृदय में तमे स्थान पामी जाओ, चेहरा पर स्मित आ जाए, एनी आंख में आंसू काढ़ी सको। 40 रुपया में आ सौदो मोंघो हतो तमने। 7 पेढ़ीना तमने आशीर्वाद है भाई, भलू थजो, तमारू भलू थजो, ए तमारा गुरुदेवनु क्यां सुधी तमे पहोंची सको छो। रूट ऑफ लव, रूट ऑफ रिलीजन, चाहे शंकर भगवान के पास जाते हो, चाहे महादेव के पास जाते हो, चाहे श्री कृष्ण के पीछे पागल बनते हो, चाहे राम के पीछे पागल हो, चाहे महावीर के पीछे पागल बनते हो, दिस इज द यूनिवर्सल ट्रूथ। हर एक को कंपलसरी चाहिए चाहिए चाहिए, 100% चाहिए।
मैं रिपीट करूं, आप पूजा को निग्लेक्ट कर सकते हो, प्रेम को निग्लेक्ट नहीं कर पाएंगे। महाराज साहब मैंने पूजा करવાનો ટાઈમ નથી, તમે બની શકે, તમે કોઈ પ્રેમ નથી આપો, નોટ પોસિબલ એટ ઓલ। चलो आगे, सेल्फलेस सेक्रीफाइस। नंबर 4, नंबर 3 साचू बोलो, आ बेमा तमने लगभग 35% मार्क मळे। आगे, टाइमलेस ट्रेनिंग। टाइमलेस ट्रेनिंग, તમે કોઈને પણ આગળ વધારવા માંગતા હો તો સમયને વચ્ચે નહીં લાવો। તમને એમ લાગે કે આના વિકાસમાં, આના ગ્રોથમાં મારું માર્ગદર્શન કામ લાગે એવું છે, ટાઈમલેસ ટ્રેનિંગ ક્યારે પણ આવી જશે। તમે કહો તમારા ટાઈમ નહીં, મારે ટાઈમ જ છે, આવી જાઓ તમે। सच बोलो, ये रूट है, रूट। गुरुदेव ने मुझे, मैं तुम्हें मालूम नहीं, मैं सच बताऊं, ये हमारे क्षेत्र में इतना तुम्हारा डेप्थ में जाना नहीं हुआ, मगर मैं बताऊं, हमारे पास संस्कृत की पहली बुक बोली जाती है, माने केजी की, केजी। वो बुक मैंने गुरुदेव भुवन भानुसुमा के पास पढ़ने का शुरू किया। 2 पाठ किए, छोड़ दी, 4 पाठ किया, छोड़ दिया, 8 पाठ किया, छोड़ दिया। पहली बुक मारा नाना नाना साधुए 6 મહિનામાં કરી છે, મને કદાચ એ કરતા 6 થી 12 વર્ષ લાગ્યા, પણ મારે કેવું છે, આવી બુક મને મારા ગુરુદેવ પોતે કરાવી। મેં કીધું સાહેબ હું કોઈની પણ આગળ નહીં, હું જ તને કરાવીશ ટાઈમલેસ ટ્રેનિંગ, ગમે ત્યારે આવજે, તારા માટે હું તૈયાર છું। આવું તમે આજ સુધીમાં કેટલા લોકોને કીધું, મારા માર્ગદર્શનથી, મારા હાથ આપવાથી, મારા ટેકાથી કદાચ તને આગળ વધવાની તક મળતી હોય તો તારા માટે મારી કે ટાઈમ જ ટાઈમ છે, ગમે ત્યારે આવજે। लड़का था ना, लड़का कैंसर में, मैं बरसों पहले की बात करता हूँ, तुमने संगीतकार का नाम सुना, मोहम्मद रफ़ी, और वो टाइम मुकेश था। एक आवाज थी इनके गले में, और हॉस्पिटल में जो लड़का बीमार था कैंसर का, वो लड़के ने, करीब घर का लड़का था, और डॉक्टर ने बता दिया था करीबन करीबन बचने का चांस कम है, मगर लड़के ने पिताजी से बात की, मैं चाहता हूँ मुकेश के मुंह से एक गीत सुनना। बाप बेटे को कैसे समझाए कि मुकेश कौन है यार, रेडियो में सुनने बराबर है, नहीं नहीं, वो तो मैं लाइव सुनना चाहता हूं उनके मुंह से। जीवन की समाप्ति की ओर जाने वाले लड़के की ख्वाहिश पूरी करने के लिए बाप ने बहुत प्रयास किए, और मुकेश को फोन लग गया, और इतना ही कहा, मेरे बेटा चाहता है, 4 स्टेज का कैंसर है, करीबन नहीं बचेगा। एक बाप के नाते मैं और तो आपसे कुछ नहीं कह सकता, और मैं इतना एबिली कैपेबल नहीं हूं कि आपको आपकी फी चुका सकूं, मगर आपके पास टाइम की भी कटौती कैसे कर सको आप। मगर मेरे बेटे की उम्मीद है कि एक गीत मुकेश से सुनना है, और मुकेश ने इतना कहा, मेरा हर प्रोग्राम टाइट है, फिर भी आपका बेटा कैंसर से ग्रस्त है, एक बाप के नाते आपने मुझे फोन किया, मैं अभी आता हूं। और मुकेश हॉस्पिटल पे गए, आईसीयू में नहीं था बेटा, कैपेसिटी इतनी नहीं थी, और वहां जाने के बाद मुकेश ने देखा बेटे को, छोटी उम्र का बेटा, और ऐसा लगा कि उनके खड़े होने से बेटे को जैसे नवजीवन मिल गया। और मुकेश ने वो लड़के के सामने गीत खुला कर दिया, गला खुला कर दिया, और बेटे की आंख में हर्ष के आंसू, जिनको मैंने सपने में देखा था, सपने भी सोचा नहीं था, आज मेरे आंखों के सामने उगा रहा है। और मुकेश को लगा कि मेरा ये वसूल हो गया इनके सामने बोलने का। और मगर जैसे वो मुकेश वाइंड अप करने के लिए तैयार हो गए, बेटे ने बोला एक और गीत सुनाओगे, मुझे बहुत आनंद आएगा। टाइमलेस ट्रेनिंग,
अच्छी जगह पे जाने के बाद टाइम को देखना नहीं है। और मैं शॉर्ट में समाप्त कर दूं, एक गीत, दूसरा, तीसरा, और पिताजी ने रोका बेटे को, बेटा ये बहुत बड़े संगीतकार है, अपने कहने से आए, तेरे हिसाब से आए। और मुकेश ने बोला पिता को, आप मत रुको, एक जिंदगी, छोटी जिंदगी में कैंसर क्या होता है मैं समझ सकता हूँ, मैं भी पॉसिबल आने वाले दिनों में बहुत कुछ, मुझे भी टाइम लेके आऊँगा तो मिल जाएगा, मगर आज इनके सामने मैंने, मुझे ये उनको मत रोको, मैं खुद तैयार हूँ। અને તમને કહું, મુકેશે ત્યાં ઊભા ઊભા 24 ગીત આ છોકરાને સંભળાયા પછી પોતાના પિતાજી આગળ બેસવાનો ટાઈમ નથી, પોતાની માતા આગળ બેસવાનો ટાઈમ નથી. વેર વી આર, हजारों काम आपके होंगे, मगर सबसे टॉप प्रायोरिटी पे तो गुरुदेव ये है, पिताजी है, माँ है, पत्नी है, बेटा है. एक अननोन लड़का जिसके साथ लेना देना नहीं था, कुछ मिलने वाला भी नहीं था, हर प्रोग्राम कैंसिल करके 24 गीत एक संगीतकार सुना देता है. वेर यू आर. एक बात તમારે લખ્યું છે, દરેક મહાનતા પીડાવાળી હોય છે અને દરેક પીડા મર્યાદાવાળી હોય છે. આ યુનિવર્સલ ટ્રુથ છે. એક પણ મહાનતા મર્યાદા વિનાની નહીં હોય. કોઈ પણ મહાનતાને મર્યાદાનું તો ફેન્સિંગ જોઈએ. તેંડુલકરની છેલ્લી ટેસ્ટ મેચ તેંડુલકર સ્ટેડિયમમાંથી પાછા આવીને પીચને નમસ્કાર કર્યા હતા, પીચને, અને એને કીધું કે 22 ફૂટની પીચે મારી જિંદગી બનાવી છે, આને ઓવરટેક કરવાનું પાપ મેં ક્યારેય નથી કર્યું. આ મહાનતા મર્યાદાને બંધાયેલી, મર્યાદા પીડાને બંધાયેલી છે. દરેક મર્યાદા તમને ક્યાંક તો રોકે છે. લબાડો ને લફંગાઓ સાથે મોબાઈલમાં કલાકોના કલાકો વાત કરવાનો ટાઈમ છે ને બીજી વાત હોય, મારે ટાઈમ નથી. ટાઈમ લેસ ટ્રેનિંગ. બધી જગ્યાએ રખડવાના ટાઈમ છે, જ્યાં ખરેખર ટાઈમ આવે નહીં, મારે ટાઈમ નથી, બહુ ટાઈમની બહુ ખેંચ છે. પ્લીઝ આ કોમેન્ટ કરતા નહીં મારી આગળ. आप कभी भी मेरे साधु को पूछो, मेरे पास चाहे मैं कितना भी व्यस्त हूँ, आई एम एवरी टाइम अवेलेबल फॉर. તમને ખબર નહીં, મારા બધા શિષ્યનું રોજ 2 વાર મળું છું, ટ્વાઇસ ઇન એ ડે ટુ માય ઓલ ફેમિલી મેમ્બર્સ. કોને મળો છો તમે? અને એક વાત અહીંયા બેઠેલા બધા માતાઓ ને બેન બધા જ સમજી લો, તમે મોબાઈલમાં વ્યસ્ત હો કે ન હો, મારે તમને એક વાત કરવી છે, દૂરવાળાને નજીક લાવવાની મહેનત કરવાને બદલે નજીકવાળા દૂર ન થઈ જાય એની મહેનત કરજો. આ તમારા નજીકવાળા બહુ દૂર થઈ ગયા, ખૂબ દૂર, તમે દૂર કરી દીધા, થબાનો તમકતા થઈ ગયા. 2000 કિલોમીટર દૂર કોઈની સાથે ચેટિંગ ને વાત કરવાનો ટાઈમ છે, પરિવારમાં કોઈની વાત કરવાનો ટાઈમ નહીં. મારી આગળ ટાઈમ આવવા નહીં, મારી આગળ. લિમિટલેસ લવ, selfless sacrifice, timeless training, countless energy, endless energy. आप सबको मैं एक प्रश्न पूछना, सच बोलो, आपके पास ऐसी कौन सी एनर्जी है कि जिनका एंड नहीं है? वो एनर्जी, ताकत, જેનો અંત ના આવે એવી શક્તિ. એક વાર તમારી જાતનો ઓબ્ઝર્વેશન કરો, તમે નક્કી કરો સાહેબ આનો તો એન્ડ આવી શકે, પણ ના આવે, આગળ વધો, આનો આગળ વધો, પૈસાનો એન્ડ આવે, શરીરનો એન્ડ આવે, સાહેબ આનો એન્ડ આવે. એક ચીજ એવી છે એનો એન્ડ નથી, એ એન્ડલેસ એનર્જી તમારી આગળ
યુટિલિટી હોય 100% ધર્મ તમારી આગળ આવી જાય. નહીં ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી શકો છો. એક વાત તમને કીધું, શક્તિ આપે એ કામ પુણ્યનું અને સહન શક્તિ આપે એ કામ પ્રેમનું. જેના પણ મનમાં ડાઉટ હોય એટલું નક્કી કરજો, શક્તિ આપે તે પુણ્ય અને સહન શક્તિ આપે તે પ્રેમ. આ એન્ડલેસ એનર્જી છે સહન શક્તિની મારી આગળ. આ એન્ડલેસ એનર્જી છે અને એનો મેં પ્રયોગ કર્યો છે, મેં એનો ઉપયોગ કર્યો છે. આખી જિંદગીમાં અહીંયા સુધી પહોંચ્યું એનું કારણ હતું કે ગુરુદેવ ઉપર મેં કરેલા પ્રેમે મને એટલી બધી સહન શક્તિ આપી છે કે આ સહન શક્તિનો ક્યારેય એન્ડ આવ્યો જ નથી, ક્યારેય નહીં. આજે પણ મને ગમે તેટલો કદાચ લાફા માર્યા, ગમે તેટલું નહીં, આ એક તાકાત મારી આગળ જિંદગીભર માટે બની રહી. આઈ વુડ લાઈક ટુ આસ્ક યુ, તમને શક્તિમાં રસ કે સહન શક્તિમાં રસ? પરમાત્મા બનાવી દેવાની તાકાત છે સહન શક્તિમાં, શક્તિમાં નહીં. મે બી પોસિબલ શક્તિ તમને શૈતાન બનાવી શકે, સહન શક્તિ તમને પરમાત્મા બનાવી શકે. સાચું બોલો, સહન શક્તિમાં ઇન્ટરેસ્ટ કેટલો? હાઉ મચ યુ આર ઇન્ટરેસ્ટેડ? મારી ભૂલ નહોતી છતાં તમે મને કીધું ઓકે, એગ્રી. मैं समझता हूं आपकी कमजोरी जो आप ऑब्जर्व करते रहना. मैं जो भगवान ने मुझे बताया, गुरुदेव के पास से मैं जो सुना है वो आपके सामने बताना चाहता हूं. आटली बड़ी धर्म क्रिया करता करता मारे धर्म मारो बनावी देवो होय तो एना रस्ता हूँ बतावुं छुं. मारे सामनो नथी करवो, मारे सहन करी लेवुं छे. सामनो करिए ते संसार छे, सहन करिए ते धर्म छे. અને એવું સહન કરું જેમાં આપણે ખ્યાલ આવે ને, કલ્પેશ તે મને 4 ગાળ દીધી, એમાં મને બીજી તકલીફ તો નથી ને, લાફો નથી માર્યો, લોહી નથી નીકળ્યું, પગે ફ્રેક્ચર. આવું સહન કરવામાં મને વાંધો શું છે? આમાં હું શું કામ એન્ડ નક્કી કરું? નહીં, ઘણા બોલે છે ને, ઘણા બોલે શું બોલે કે સાહેબ સહન કરવાની પડે. હે કોણે? તમે નક્કી કરી? endless energy, bearing power. શું કહ્યું? અમને વાતાવરણ સારું મળ્યું કે સારું શોધ્યું? નહીં બોલ, શોધ્યું કે મળ્યું? અને તને લાગતું હતું વાતાવરણ ખરાબ હતું તો અમે તો તને લેવા તૈયાર હતા ક્યારે પણ. માર ખાવા જ બેઠા છો ત્યાં. શું કહ્યું? કેટલા વિષય હોતા તો કોણે ના પડી હતી અહીં આવવાની? ઘણાને તો સચ बताऊं, एक मैं अभी दृष्टांत एग्जाम्पल दे के आया था. एक चोर निकला जेल से, 10 साल तक जेल में रहा था, और जब बाहर निकला तब उसको लगा या तो अब टेंशन आ गया है, कहाँ रहना कहाँ खाना. यहाँ तो जेल में सब कुछ ठीक था और उसको लगा ये तो अपने को नहीं जाएगा यार. और उसने तय किया. और ऐसे जेल में तो आ नहीं सकते, होटल में जा सकते, जेल में थोड़ा जा सकते. अपराध करो तो जेल में जाने का मौका मिलता है. अभी वो ढूंढ रहा है कि जेल में कैसे जाना. और वो ऐसा रास्ते में एक बहन छाता लेके आ रही थी, उसको लगा ये है जेल बाजू में है, पुलिस चौकी बाजू में, ये बहन जा रही है, दौड़ के इनका छाता खींच लूं. बहन चिल्लाएगी, पुलिस आएगी, पकड़ लेगी और फिर जेल और निश्चित. और वो दौड़ा, बहन के हाथ से छाता लेके भागा और उसको लगा जो और उनको लगा
और उनको लगा कि ये बहन तो चिल्लाएगी, बहन ने आवाज ही नहीं निकाला। अभी उनको लगा ये तो प्रोग्राम फेल हो गया। फिर भी उसको लगा बहन को पूछने तो दे, और वो बहन के नजदीक गया और એને કીધું બેન તમારી છત્રી લઈને ભાગ્યો તો પણ તમે બૂમ ન પાડી, ભાઈ તમારી તો લઈ જાઓ, મેં કોકની ઉઠાવી છે। જેલમાં જવાનો પ્રોગ્રામ કેન્સલ થઈ ગયો। બસ આ સ્થિતિ છે। હું તમને ગમે તેટલા બહાર કાઢું, તમે જેલમાં જ જવું છે પાછું। किसी भी साधु को पूछो, मैं दो ही बात करना चाहूंगा। दो ही पत्थर बाजू में पड़े थे और एक पत्थर को लेने के लिए लाख लोग आए। बैंड बाजा बज रहा था और प्रतिमा बन के वो पत्थर उठ रहा था। बाजू में पत्थर गिरा था, उसको किसी ने पूछा, दोस्त खदान में से मैंने सुना था तुम दोनों एक साथ निकले थे। उसने बोला सही है, मैं भी उनके साथ ही निकला था, मगर तू यहीं को बैठा, ये तो जा रहा है, लाख लोग लेने के लिए आए। ત્યારે એને એક જ વાત કરી, એ સહન કરવામાં ટકી ગયો, હું સહન કરવામાં તૂટી ગયો। શિલ્પી ટાકરાના પથ્થર મારી ઉપર મારતો હતો, મેં એને રોકી દીધો, બસ ભાઈ બસ, હવે નહીં, હવે નહીં, હવે નહીં। એ અટકી ગયો અને હું બસ ચટણી વાટવાના પથ્થરમાં કામ લાગીશ। એને પ્રતિકાર કર્યો જ નહીં, આવવા દો, આવવા દો, આવવા દો। ભગવાનની પ્રતિમા બની ગયો, લાખો લોકોને પૂજ્ય બની ગયો। સહન કરે તે પરમાત્મા બને, સહન ન કરે તે ચટણીના પથ્થર બની જાય। વી આર રેડી ફોર ધીસ એન્ડલેસ એનર્જી। ચાલો એક બહુ નાનકડી વાત કીધું, 5 મિનિટનો ટાઈમ છે, એટલે આપણા ઉપકારી છે એનું આપણે સાંભળવાની તૈયારી કરી। હું દુનિયાની વાત નથી કરું, ચલો બહુ ટૂંકી વાત बताऊँ। मेरे हृदय में मैंने जो उपकारी माना, मेरे माता पिता जो भी है उनकी ओर से मुझे कोई भी दिक्कत आएगी, 100% गुरुदेव वहाँ एंडलेस एनर्जी। मारा पिताजी मैंने कहीं पण कहेशे साहेब त्या प्रतिकार नहीं, मारी बा कहीं पण कहेशे प्रतिकार नहीं। जे तमारा उपकारी होय ते, तमारा गुरु तमारा सेठ जे होय ते, गुरुदेव सारी दुनिया में बवाल कर लूँगा, मगर जिनका उपकार मैंने जिंदगी में लिया है उनके खिलाफ वहाँ उनके लिए गुरुदेव 1% एंडलेस एनर्जी। धर्म क्रिया खूब करूँ छूँ, गुरुदेव धर्मी क्यारे थईश? आ चालू राखजो, पूजा छोड़ी नहीं देता, नहीं એટલે ગેરસમજ नहीं करता તમે। आ धर्म क्रिया करता करता हूँ धर्मी बन्यो छूं ने। चारित्र न लीधो तो मारी આગળ તાકાત ન આવે। ચારિત્ર લીધા પછી ગુરુદેવે સમજાવ્યું તમને ધીમે 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 આ તાકાત આવી, એટલા માટે દીક્ષા જીવન એ માઇલસ્ટોન બને છે મારા માટે। ક્રિયાનો વિરોધ હોઈ શકે જ નહીં, પણ ક્રિયા જે કારણસર થવી જેનો ગોલ આપણી આગળ નક્કી નથી, માટે આપણે ભટક્યા કરીએ છીએ। એન્ડલેસ એનર્જી મારા ઉપકારી જે છે ગુરુદેવ, એનું સહન કરવાની બાબતમાં ક્યારેય પાછો નહીં પડું। મેં પહેલાં વાત કરીને આજે ફરીવાર રિપીટ કરું, એક સમય હતો ઘરમાં ભૂલ કરતા દીકરો ડરતો હતો, આજે ભૂલ કરતા બાપ ડરે છે। લગભગ સાચું છે ને? જે સાધુજીમાં ભૂલ કરતા શિષ્ય ન ડરે અને ભૂલ કરતા ગુરુને ડરવું પડે, સાધુ સંસ્થાનું થાય શું? લગભગ ઘરની સ્થિતિ આ બનવા ચૂકી છે, કોઈને સાંભળવું નથી। आ चौथे नंबर की बात एंडलेस एनर्जी, और 5वें नंबर की सिस्टम डाउटलेस डायरेक्शन। डाउटलेस डायरेक्शन, कोईने पण मार्गदर्शन आपो त्यारे भ्रमित न करो। डाउटलेस, शंका विना मार्ग। अवड़ा रस्ते ने क्यारे पण कोईने सलाह आपीने चढ़ावो नहीं। जे चीज तमे नथी जानता त्या ना पाडो, आमा आपणुं काम नहीं। अचलगढ़ की शिविर में गया और गुरुदेव से जो डायरेक्शन मिला ना, वो डायरेक्शन ने मुझे धन्य कर दिया।
मैं किसी भी एड्रेस पे जा सकता था, किसी भी एड्रेस पे। ખ્યાલ આવે હું તમને શું કહું છું? સાચો પત્ર ખોટા સરનામે ગયો તો પાણી ઉતરી જશે. અહીંયા રહેલી બહેનોને ખાસ ગંભીરતા દેવી, તમારી સાચી પણ લાગણી ખોટા સરનામે ઢોળી દેવાનું પાપ કર્યું, જિંદગી તબાહ થઈ જશે. લાગણીનો પત્ર સાચો પણ સરનામું ખોટું, મરી જશો. હજારો બહેનો આજે ખતમ થઈ ગયા લબાડ છોકરાઓની પાછળ. લાગણી કદાચ સાચી, સરનામા હરમખોરીના પકડ્યા અને વાતમાં સમજી જ ન શક્યા, જિંદગી ખલાસ કરી નાખી. डाउटलेस डायरेक्शन. मैं दिल्ली में गया, मैं मैट्रिक पास और 10,000 करोड़ के फंडिंग के खिलाफ मैं पिटीशन करना चाहता था. मुझे समझ में नहीं था मैं किसके पास जाऊं. और एक पश्चिम बंगाल का IAS ऑफिसर, मैं उनसे मिला और क्या उसने पिटीशन का ड्राफ्टिंग करके दिखाया. नॉट यू सम, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुप्रीम के एफ चीफ जस्टिस RC लावोटे ने मुझे कहा, गुरुदेव आप फोकट आ गए, आपकी एनर्जी वेस्ट होगी, ये दिल्ली है. आप बोलते मेरे पास पैसा है नहीं, पैसा मैं दे भी नहीं सकता हूँ. गुरुदेव आपका काम होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. जब सुप्रीम का चीफ जस्टिस मुझे ना बोलता था, तब ऐसे माहौल के बीच में मेहनत करते 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 एक IAS ऑफिसर मिला जो ब्यूरोक्रेसी में था. उसने बता दिया, गुरुदेव यू कैन विन, आई एम विथ यू. और એને કલ્પેશ મને જે ડ્રાફ્ટિંગ કરી આપ્યું, ત્યારે ડ્રાફ્ટિંગ મેં એડ કર્યું. રાષ્ટ્રપતિ ભવનમાં ઉપરાષ્ટ્રપતિની આગળ સહી થઈ ગઈ. 90% જીત તો મારી ત્યાં થઈ. અને कदम कदम पे मुझे सब डायरेक्शन मिलते चला. सोनिया गांधी से भी मिला, अडवाणी से भी मिला, सुषमा स्वराज से भी मिला, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मिला, प्रिंट मीडिया से मिला, जितने लोगों से मिला सबने मुझे राइट एड्रेस दिया. गुरुदेव यहाँ, अभी इस गली पे यहाँ मुड़ो, गुरुदेव अभी ये करो. और सच बताऊं, इस देश के 15 करोड़ बच्चे को छोटी उम्र से सेक्स एजुकेशन देने की मुहिम थी. इन सभी के अच्छे डायरेक्शन के बाद 3.5 साल के बाद मैं जीत गया और निर्णय हुआ सेक्स एजुकेशन नहीं देना है. डाउटलेस डायरेक्शन. તમારી આગળ કોઈ પણ ધંધા માટે ડાયરેક્શન લેવા આવે, डाउटलेस डायरेक्शन. मैं भी पॉसिबल है તમારો ધંધા में, मैं 5 मिनट का समय तो बताऊं, है टाइम? हाँ, मेरे पिताजी की दुकान थी ना. डाउटलेस डायरेक्शन क्या हो सकता है राजेश? मेरे पिताजी ने मुझे बताया, पिताजी हमारे वहाँ नौकरी करने वाले 5 नौकर थे, 5 दुकान थी कपड़े की. और एक दिन पिताजी ने सबको इकट्ठा करके कहा, हमारे भाई नौकरी करने वाला नौकर है, 20 साल हो गए, वो कब तक नौकरी करेगा? तो पिताजी ने बोला, हम इनको सेठ बना देंगे. તમને વિશ્વાસ નહીં તો કહી દઉં કલ્પેશ, નોકરને શેઠ તો બનાવ્યો પિતાજી, પણ અમારી દુકાનની બિલકુલ સામે દુકાન કરી આપી. આ એક જ આટલો રસ્તો જાય, સામે દુકાન, એ જ આઈટમ. રાજુ આ લગભગ કેટલું પોસિબલ? લગભગ તપ તો ખરું ને, ઇમ્પોસિબલ તો નથી, કારણ કે ઇમ્પ્લિમેન્ટ મારા પિતાજીએ કર્યું. ઇમ્પોસિબલ નહીં, પણ થોડું મેન્ટલી ટપ તો ખરું ને. અને એક અમારી દુકાનની સામે નોકરની દુકાન કરી આપીએ તો ઠીક છે, માલ પણ એ જ, ઉધાર પણ અમારે જ આપવાનું. અને સૌથી મોટી વાત તો એ કે એની નવી દુકાન ખોલ્યા પછી જેટલા ગ્રાહકો અમારી દુકાને આવે, જૂના ગ્રાહકો બાંધેલા, પિતાજી દરેક ગ્રાહકને દુકાને મોકલે, અમારી નવી ઓફિસ ત્યાં ખુલી છે, માલ ત્યાંથી લઈ લે. આઈ એમ પ્રાઉડ ટુ માય ફાધર. આવા પિતાજીનો હું દીકરો છું, જેમને પોતાના ઘરમાં, પોતાના દુકાનમાં કામ કરનાર લોકોને શેઠ તો બનાવ્યું, ગ્રાહકો ત્યાં મોકલ્યા. મેં કીધું હતું, બાપુજી આ શું કરો છો? મને કે આપણી તો જામેલી દુકાન છે, એની જમાવવાની જવાબદારી આપણી છે. कैन बिलीव इट? और मैं आपको वो कहना चाहूँगा, जिस दिन मेरी दीक्षा हुई पिताजी के साथ, तो हमने खुला दिले कहूँ, અમારા પરિવારમાં જેટલા રડતા નહોતા એના કરતાં કઈ ગુણા તો રડતા આ નોકરો હતા. અમારો બાપ જાય છે.
આવો પ્રેમ તમે કેટલાનો પામ્યા? ડાઉટેડ ડાયરેક્શન, એન્ડલેસ એનર્જી, સેલ્ફલેસ સેક્રિફાઈસ, લિમિટલેસ લવ, આ ધર્મ છે. ધીસ ઇઝ ધ રૂટ ઓફ રિલિજન. વ્યાખ્યાન સાંભળો, ખુશીથી સાંભળો, હજી વધારે સાંભળજો. 1 કલાક 2 કલાક 3 કલાક 4 કલાક પરમાત્માની પૂજા કરજો. ફરી વાર કહું છું, કરજો. એક સામાયિક નહીં મળે 10 સામાયિક કરજો. પણ આ બધા માઇલસ્ટોન છે, મંજિલ આ છે જે મેં તમને કીધી તે. ભગવાનની કૃપાથી આ મંજિલ નહીં આવી શકે એવું નથી, આવશે જ. માત્ર તમારું ફોકસ જોઈએ. વી આર રિયલી હેપી. બહુ મજામાં. અમારા જિંદગીની સામે મેં જોઈએ ત્યારે એમ લાગે હા કમાન. હમણાં હું કામમાં જઈએ, કમની દિવેર કયું કામ હતું આ प्रवचन? हाँ, अभी वीआर करके गया था, थका हुआ भी था, अपने जैन का एक भी घर भी नहीं था, और ऐसे ही गए तो लेने के लिए आए. जहाँ घर में ठहरे थे 5-7 लोग आएंगे ऐसा लगा, लेने के लिए सब नॉन जैन आ गए और सब होकर के कल पे 300-400 लोग. अभी मैं समझता था रोज के प्रवचन गर्मी के दिन में थोड़ा आराम मिलेगा तो यहाँ आराम कर लूँगा, मगर वो आए गुरुदेव 40 વર્ષે અહીંયા મેં કોઈ સાધુ ભગવાન જોયા, આપ પ્રવચન કરશો? બધું બોલો કયો ટાઈમ જોઈએ છે? સાહેબ 10 થી 11, 1 કલાક પ્રવચન કર્યું. આ મેં પરાક્રમ નથી કર્યું, બસ આ એક માનસિકતા છે, એન્ડલેસ એનર્જી. આમાં મને શું મળશે કૃષ્ણજી? એ લોકો ગાંડા થઈ ગયા, ગાંડા. 1 કલાક એ લોકોની આંખમાં મેં જોયું છે, એમ લાગે હો આટલો બધો હોભાવ. સાહેબ કમાલ કરી, અમે તો ધાર્યું નથી. 1 કલાક આપ્યો, 1 કલાક આપ્યો, છેક સુધી નીકળ્યા ત્યાં સુધી એ લોકોના મગજમાં. અને એટલું કહી દઈશ, છેલ્લું વચન. તિજોરીમાં પૈસા રાખવા એ પરાક્રમ નથી, કોકના હૃદયમાં આપણું સ્થાન રાખવું એ પરાક્રમ છે. દાઉદની તિજોરીમાં આપણો પૈસા રહી શકશે, પણ કોકના હૃદયમાં આપણું સ્થાન હોય એ કંઈક આપણે બલિદાન આપવાની માનસિકતા છે તો જ થશે. ખૂબ આનંદ આવે છે મને, પણ કેટલાક ડાઉટ આપણા ક્લિયર થઈ જાય બહુ જરૂરી છે. મરતા પહેલાં બધે હિસાબ અને કિતાબમાં ચાલશું તો ધર્મ ક્રિયા કરી શકશું, ધર્મ નહીં કરી શકીએ. આપણે ધર્મ કરવો છે, માઇલસ્ટોનથી મંજિલે પહોંચીને જ રહેવું છે. મરતા પહેલાં આપણું કોન્શિયસ એમ કે સાહેબ 80-90% તો લાગે છે હું બહુ નજીક આવી ગયો છું. દેટ્સ ઓલ. 7 દિવસની સ્થિરતા જ આજે કેટલામાં? ચોથો. હજી 3 દિવસ એક એવા જ વિષય છે. એની પહેલાં એક વાત કરું. એક એવું પુસ્તક જેને વાંચીને 18 છોકરા સુસાઇડ કરતા પાછા આવી ગયા, મને મળી ગયા. એમાં એક પુસ્તકનું નામ મંદીમાં પણ મસ્તી. એક એવું પુસ્તક જેને વાંચીને ધીરુભાઈ અંબાણી મળવા માટે આવ્યા. ક્યાંક અટકો, ક્યારેક અટકો. એકવાર આવીને ન ગયા, 1, 2, 3, 4 અને 5 મિટિંગ જે પુસ્તકથી થઈ, એ પુસ્તકનું નામ ક્યાંક અટકો અને ક્યારેક અટકો. પ્રશ્ન પુસ્તકની કિંમતનો નથી, વેલ્યુનો છે. આપણે પ્રાઇઝની દુનિયામાં જીવીએ છીએ એટલે આપણે સમજીએ, વેલ્યુની દુનિયામાં જીવીએ તો આપણને ખબર પડે કે કેટલી મોટી તાકાત લઈને બેઠું છે. અને એક પુસ્તક ખતરાની ઘંટડી, આખું ટાઇટલ છે પુસ્તકના સેટનું સ્ટોપ સમવેર. 50 વર્ષે અટકો ધંધામાંથી, 55, 60, 70 આ ક્યાંક અટકો. ક્યારેક અટકો 1 કરોડ, 10 કરોડ, 20 કરોડ, 50 કરોડ, 100 કરોડ, 500 કરોડ, બસ ઇનફ. બસ હવે નહીં, હવે પૈસાની પાછળ સમય પણ નહીં, કાંઈ નહીં. ક્યાંક અટકો, ક્યારેક અટકો એ પુસ્તક ધીરુભાઈને કોકે મોકલ્યું હતું, વાંચીને મળવા આવ્યા. અને શું એમને ગાઈડન્સ નીતિની વાત અત્યારે નથી કરતો, પણ સ્ટોકમાં જેટલા પુસ્તક બચ્યા હતા મંગાવ્યા હતા એ આવ્યા છે. 300નો સેટ આજે 100 રૂપિયામાં ઉપલબ્ધ છે. ખાસ તમારા માટે એન્ડલેસ કોમ્પિટિશન ચાલી, સ્ટ્રેસ, ઇરિટેશન, ફ્રસ્ટ્રેશનમાં આખી યંગ જનરેશન ભાગી રહી છે, એને પણ બચાવવા માટે આ સેટ બહુ ઉપયોગી છે. બહારથી મળશે.
हाँ 5 2 મિનિટ ભગવાન કયા રસ્તે બને છે? ઉભા પ્રેમના રસ્તે, રાઈટ. ધર્મ જુદો અને ધર્મ ક્રિયા જુદી. ધર્મ કોને કહેવાય? બહુ શરૂઆતમાં મેં વાત કરી, પૈસો જુદો ને પૈસાથી મળતું સુખ જુદું, એમ ધર્મ જુદું ને ધર્મ ક્રિયા જુદી. 5 સ્ટેપ બતાવ્યા ને, એમાંથી એકાદ સ્ટેપ બોલી શકાશે. બોલો બેન. સાચું. એન્ડલેસ એનર્જીમાં કઈ એનર્જીની વાત કરી હતી? પાછળ હા બોલો. હે સહન શક્તિ, બરાબર છે. આપણું પોતાનું જીવન બરબાદ થવા ન દેવું હોય તો ફિલિંગ ધ બ્લેન્ક્સ. હા બોલો. બરાબર છે. કહેવાનો ભાવ એવો છે કે ડાઉટલેસ ડાયરેક્શન એટલે કે આપણી લાગણીને ખોટા સરનામે ઢોળવી નહીં. સંસાર શું છે ને ધર્મ શું છે? બહુ નાનકડી માર્મિક વાત કરી હતી. આનું નામ સંસાર, આનું નામ ધર્મ. હા બોલો. રાઈટ. સામનો કરીએ તે સંસાર, સહન કરીએ ધર્મ. બીજી વાત આવતીકાલે 9 વાગે. પચકાણ ઉપવાસ ધરે મેરમ પારિટાવણ જાગરણ શ્રેય આયમિલિકમ જાગરણ શ્રેય સારો મંગલ મંગલ કારણમ પ્રધાન સર્વ ધર્માણમ જય.